Hi guys, I welcome you all to Inside SS YouTube channel. I'm Vishali and here I am to help you out in understanding how to gain 50 marks extra in last 50 days of your preparation. In case you have been preparing since past 4 to 5 months and I do know आप में से बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने just right away preparation start की होगी. Once they get to know ना कि आखिरी का 2 महीने रह गए या 50 days रह गए, then people start preparing. So it's completely fine. I'll tell you what to do, how to do, कौन से important topics है, tension मत लो. We'll just start with the beginning. And also a very important thing for all of you, 200 plus marks is a need of the hour because अगर नहीं लाते हो, it's very hard in the ground duty at least. Adam logistics and अब technical भी because EKT हटा दिया है. So 200 plus is the necessity because there are so many people who clear, who get recommended, but अब merit में आना is a difficulty. Okay. Now moving on to the thing what I'll be discussing in this video. The first one is that how to gain 50 marks extra. उसका कैसे पता चलेगा? I'll tell you the most important topics. और जो लोग जानते हैं मेरी last minute revision videos के बारे में, उसमें से at least 4 से 5 questions आते हैं. And believe me on a fact, जब मेरे crash course students जो last moment एक महीने में पढ़ के अगर 200 plus marks लाते, 228 etc., तो तुम भी ला सकते हो. So I'll tell you the most important topics and किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो करने चाहिए एग्जाम के लिए. आई बी डिस्कसिंग इट विद यू. द सेकंड थिंग इज, आप में से बहुत लोगों को डाउट्स रहते हैं, कैन आई लीव सर्टन सब्जेक्ट व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग. किसी का मैथ्स वीक है, किसी का इंग्लिश वीक है. टू बी सीरियस, मेरा भी वीक था, बट आई क्लियर द एग्जामिनेशन. ओके, आई ऑल्सो गॉट रिकमेंडेड. सो इट्स नॉट अ बिग डील. यू कैन डू इट वेरी वेरी इजिली. एंड सिर्फ मैंने एग्जाम क्लियर नहीं किया, SSB क्वालिफाई नहीं किया, बल्कि देर आर हंड्रेड्स ऑफ माई स्टूडेंट्स who are in academy now, thousands of my students who are clear the written. So yes, you can do it. The third one is, how many hours do you need daily? Okay, ये पहले ही बता देती हूँ. I just need 3 hours of yours every day. अगर commit कर सकते हो अच्छे से, there is nobody who can stop you from gaining 200 plus marks in last 50 days. Okay. Coming to the next one and the last one, that is I'll be giving you a daily checklist, a timetable. उसको print करके सामने लगवा लेना अपने जो भी जहाँ पे बैठ के पढ़ते हो, and just checklist को रोज टिक करते रहना कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, and then it's my guarantee nobody can stop you from clearing this examination. Also, one more thing, I have been, proclaimed by a lot of people that you ma'am leaked the examination. I don't know how you do it, but जो आप पढ़ाते हो 30 minutes की वीडियो में उसमें 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कैसे करते हो? So, तुम्हें इसके लिए कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है. Okay, you don't need a specific study to leak the examination. You can leak the examination for your own self, and it's very very easy. इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा. So let's head on to our preparation plan for 50 days to gain 200 plus marks. Be with me till the end, and there is nobody who can stop you from gaining these marks. Let's begin. Carefully look at this ladder. This is your 50-day का preparation plan. और इन 50 days में आपको सक्सीड करना है. 2 lakh of you will be giving the examination and only max to max 5%. 10,000 बच्चे भी नहीं होते usually, but still I'll say 5%. Hardly 7,000 can clear the examination. Okay? आप इस लैडर को क्रॉस करने वाले हो, चाहे आप 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे 3 महीने से, और चाहे 2 महीने से. लास्ट 50 days इज वॉट विल मैटर. और इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसका बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है. और वो कब आएगी स्ट्रेंथ? जब आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी. ठीक है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, मैम मेरी मैथ्स खराब है, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, मुझसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्या मैं सब्जेक्ट छोड़ सकता हूँ? चलो मूव ऑन करते हैं इस क्वेश्चन पे. आपने कभी क्वेश्चन पेपर उठा के देखा है आज तक या नहीं? सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए दैट इज टेस्ट उठा के देखो. कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ. ठीक है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करो और रियलाइज करो कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें तुम बहुत अच्छे हो. ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ्स जो हैं उनको निकालो और रियलाइज करो कि पक्का ऐसे 1-2 सब्जेक्ट निकलेंगे जिनमें तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे, चाहे उसमें से कोई एक सब्जेक्ट इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो. ठीक है, वंस यू फाइंड आउट कि दिस इज माई गुड सब्जेक्ट, उसमें आपको एक्यूरेसी ऐसी लेके आनी है कि 90% क्वेश्चन आप बहुत ढंग से कर पा रहे हो. ओके, लेफ्ट ओवर एक और सब्जेक्ट होगा जिसमें आप ऑलमोस्ट ऐसे होंगे कि हाँ 60-70% क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं. उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतनी मेहनत करो कि उसमें आपकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 80% रहे. उसके बाद एक में थोड़ी खींचतान के मेहनत कर लो कि चलो 50-60% क्वेश्चन मेरे ठीक हो रहे हैं, और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें चलो 40% भी ठीक हो गए तो हो गया. फिर आप बोलोगे मैम क्या इसमें 200 प्लस मार्क्स आ जाएंगे? अरे यार बहुत ज़्यादा आराम से आएंगे. टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 100, और उसमें से सिर्फ अगर आप 66 क्वेश्चंस भी एक्यूरेटली ठीक कर देते हो, यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट मार्क्स? 200 प्लस मार्क्स. एंड एट द सेम टाइम
आप लोग ये भी अचीव नहीं कर पा रहे। अगर आप मैक्स ये भी मान लो कि मैम एक्यूरेसी नहीं रहेगी, मेरे 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 70 to 75 क्वेश्चन भी तुम अगर अटेम्प्ट करके आ रहे हो, 25 क्वेश्चन फिर भी छोड़ रहे हो, सोचो, ठीक है। एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 सब्जेक्ट। आपके मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, आपके जीके में 25 क्वेश्चन आते हैं, आपके इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आते हैं, और जो मैथ्स जिसको आप रोते रहते हो उसमें 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, एंड दैट इज इट। ओके, और इसमें से भी इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब 12-13 क्वेश्चंस तो ना क्लिक कर लोगे आप। बस यू नीड टू रियलाइज कहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब रही बात, क्या मैं कोई सब्जेक्ट छोड़ सकता हूं? छोड़ोगे कुछ भी नहीं, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करते हुए वीकनेसेस को कम टाइम दोगे। तो जो आपका डेली सब्जेक्ट प्लानर होना चाहिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आप मैक्सिमम टाइम डालोगे अपनी स्ट्रेंथ्स में। अब देखो ये सबके लिए अलग है, इसलिए मैं कहती हूँ कभी भी किसी एक टॉपर की बात पे मत जाओ कि मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ के मैंने एग्जाम निकाला, मैंने सिर्फ जीके पढ़ के एग्जाम निकाल लिया। वो उनकी स्ट्रेंथ थी, अपनी स्ट्रेंथ रियलाइज करो। क्या अच्छा है? जीके अच्छा है तो अपना मैक्सिमम टाइम जीके पे निकालो। रीजनिंग अच्छी है, अपना मैक्सिमम टाइम रीजनिंग पे निकालो, ठीक है। और मैं आपको समझाऊंगी अभी कि कौन से टॉपिक्स इजी हैं, कौन से टफ हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब इससे थोड़ा सा कम एक और सब्जेक्ट में जो मैंने अभी आपको बताया, फिर एक और जो और सब्जेक्ट रहेगा उसमें थोड़ा और कम, और लास्ट प्रायोरिटी दोगे जिसमें बहुत ही वीक हो। और आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? आप सबसे पहले इस सब्जेक्ट को लेके बैठते हो और इन सब को इग्नोर करके इसमें भी मार्क्स नहीं लाते, और इसमें तो डूब जाते ही हो, बिकॉज वही है, वीकनेस बचपन से रही है मैथ्स में, अब कहाँ से ठीक हो जाएगी इमीडिएटली? 2 महीने में तो नहीं होगी, 6-7 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो तो शायद हो भी जाती। ओके, अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जो इजी हैं और टफ है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स कौन से करने हैं। मैं टॉपिक्स किस लिए बोल रही हूँ? बिकॉज ये जो आपको मैंने सब्जेक्ट बताया ना, जैसे मैथ्स है अगर आपका वीक है, अगर इंग्लिश आपका वीक है, तो कहाँ से आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो कि अगर आप उस पर मेहनत कर रहे हो। जैसे बच्चे बहुत होते हैं जो सिनोनिम्स पढ़ते रहते हैं, एंटोनिम्स पढ़ते रहते हैं, यार डिक्शनरी है पूरी की पूरी, लोग कहते हैं हिंदू पढ़ लो पूरा, मतलब 3-4 महीने का, वहीं से वह क्या बात है। ऑफकोर्स इतना बड़ा पेपर होता है, पूरी डिक्शनरी कवर हो जाएगी यार 2-3 महीने में। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो हमारा जो मेन फोकस रहना चाहिए दैट इज कि अगर मैं कहीं पे 5 मिनट लगा रहा हूं तो मेरा एक क्वेश्चन निकलना चाहिए उसमें से, दैट इज इट। ओके, सो देखो हमारा जो सेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडिक्टेबिलिटी, टफ एंड ईजी को हम 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैथ्स जो है 25% आजकल आने लग गया है लेंदी, तो आप मान के चलो कि चलो 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारे नहीं भी हो रहे, डज नॉट क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन जो और क्वेश्चन है दैट इज 75% ऑफ मैथ्स, ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पे डिसाइड होता है। मैं आपको भी बताऊंगी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो क्या करना है आपको? सिर्फ इस पे फोकस रखना है, और हमें उस लेवल पे नहीं जाना है कि हम एसएससी बैंकिंग वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, ट्राई एंड एनालाइज द पैटर्न कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे जाते हैं एग्जाम में, अकॉर्डिंगली करो। इंग्लिश में बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक, कि जहां से क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग बहुत ईजिली एरर्स वाले क्वेश्चन, पैराग्राफ वगैरह क्या है, इसको अगर आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो ये वाले जो है कंपेरेटिवली ईजी आते हैं। उसके बाद जो टफ रहते हैं क्वेश्चंस दैट इज एंटोनिम सिनोनिम, जिनको आप नहीं कर पाते। और आजकल बेस्ट पार्ट क्या रहा है कि दे आर कमिंग इन अ लाइक विद इन अ सेंटेंस। ओके, सो सेंटेंस के थ्रू भी आर एबल टू एनालाइज कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है, तो ऑफकोर्स इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। ओके, हर साल जीके में कुछ 3 से 4, 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लोग टच भी नहीं कर पाते, और उसको आपको भी नहीं करना है। कुछ करंट अफेयर्स आ जाएंगी रैंडमली उठ के, या कुछ ना कुछ वियर्ड क्वेश्चन उठ के आएगा, उसको भूल जाओ। लेकिन उसके अलावा जो 20 क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट आने ही आने 18 से 20, और ये मैं आपको अभी टॉपिक्स बताऊंगी कहाँ से आते हैं, तो उनको अच्छे से करो। रीजनिंग जो है यार, ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से आप अपने मार्क्स 100% फिक्स करके चल सकते हो। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं ना, ये आपका मेरे हिसाब से ये बड़े वाला बॉक्स होना चाहिए रीजनिंग हर बच्चे के लिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। उसके बाद यू कैन कीप, अगर इंग्लिश है तो वो, अगर आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ्स है तो वो, ओके। उसके बाद आप लोग यहाँ पे कुछ जीके को रख सकते हो, एंड यहाँ पे जो भी आपका सबसे वीकेस्ट है, राइट। सो अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग सबसे बड़ा बॉक्स रखो, सबसे ज़्यादा टाइम इधर डिवोट करो। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और रियलाइज करोगे कि इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद
सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। और मेरे खुद के टेस्ट पेपर जो मतलब हम लोगों ने डाले हुए हैं अपने कोर्स में, अभी मैं दिखाऊंगी तुम्हें, 80% क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं एग्जैक्टली इन द पेपर। तुम देख के शॉक हो जाओ। और आखिरी में मैं 2 जो पेपर्स हैं वो फॉर एवरी वन कंप्लीटली ऑन द इनसाइड SSB ऐप, इट्स अवेलेबल फॉर एवरी वन, वो लगा के चले जाना, उसमें से भी तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स द एक्यूरेसी एंड ईजीनेस ऑफ रीजनिंग। अब हम बात करते हैं कि कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, और अगर आपको इसका नहीं पता, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड शुड बी नोन टू यू। और उसके बाद हम डिस्कस करने शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। देखो, मैथ्स में कुछ नए टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं, दैट इज नंबर सीरीज वाले जो क्वेश्चन है वो। उसके बाद क्लॉक के कुछ क्वेश्चन हैं जो ऐड हुए हैं। प्रोबेबिलिटी जो है ये एक नया टॉपिक है जो ऐड हुआ है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल जो है वो भी अब देखा गया है एग्जामिनेशन के अंदर, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ये भी कवर कर लें, ठीक है। उसके साथ साथ अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं, दैट हैज ऑल्सो बीन एडेड इन द क्वेश्चन पेपर, सो प्लीज लुक इन टू दैट एज वेल। फिर सिंप्लीफिकेशन भी ऐड हुआ है, एंड एरिया और पेरीमीटर जो है, ये वाले टॉपिक्स ऐड हुए हैं, एंड दे आर वेरी इजी, ओके, दे आर नॉट लाइक टफ टॉपिक्स। हम लोगों ने बचपन में पढ़े हैं, आप लोग मेहनत करोगे तो हो जाएगा। और टू बी वेरी सीरियस यार, मेरी मैथ्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। मेरे मैक्सिमम जो मार्क्स मैंने बनाए हैं रीजनिंग के थ्रू, जीके मेरी अच्छी थी, इंग्लिश अच्छी थी। मैथ्स में ऐसा था कि आई यूज टू सॉल्व ना, जो अपने स्कूल टाइम के जो लंबे लंबे मेथड्स होते थे ना, उससे सॉल्व करती थी। इन द लेटर अटेम्प्ट्स आई रियलाइज्ड कि ओ माई गॉड, द मेजर फॉल्ट इन मैथ्स जहाँ पे मेरे मार्क्स नहीं आए थे, इट्स बिकॉज मैं लंबे मेथड्स कर रही हूँ। आज की डेट में जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है दैट इज शॉर्टकट्स, ठीक है। शॉर्टकट भी बताऊंगी हाउ यू एग्जैक्टली हैव टू लुक इनटू इट, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, टॉलर एंड शॉर्टर, ठीक है, दिस इज द न्यू टॉपिक। उसके बाद लॉजिक बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ऐड हुए हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज मिसिंग सीरीज, ठीक है। मिसिंग सीरीज वाले जो क्वेश्चन जो ऐड हुए हैं, 2 टाइप के हैं। एक तो अल्फाबेट बेस्ड आए हैं, ठीक है, जो हम देखेंगे, और दूसरे आए हैं नंबर बेस्ड, ओके। उसके बाद देखे गए हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, ठीक है, और डायरेक्शन और रैंकिंग के क्वेश्चंस। तो प्लीज इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से देख लेना। ये नए एडिशन है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आपको ये नहीं दिखेंगे, सो प्लीज मेक अ नोट कि आप ये सारे टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं अच्छे से। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, आप डायरेक्टली ना ज्योग्राफी पॉलिटी ऐसे जाते हो। इंस्टेड जो एक एफकैट एग्जामिनेशन कुछ ऐसा है, मैं सबसे पहले आपके साथ जीके शेयर करूंगी, ठीक है। एफकैट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, ना कि सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ने का मन है ना, प्लीज आप जाके सीडीएस के लिए पढ़िए। एफकैट इज नॉट मेंट फॉर दैट, बिकॉज एफकैट इज वेरी स्पेसिफिक कहां से क्वेश्चन आने। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, और ये ना तुम जाके इस बार एग्जाम में देख लेना, एंड मेरा नाम बदल देना अगर यहां से क्वेश्चन ना आए तो, ठीक है। फर्स्ट इज वॉर, वॉर पे क्वेश्चन आना ही आना है। सेकेंड चीज, जितने भी मेडिवल हिस्ट्री के और दिल्ली सल्तनत वगैरह के जितने भी फर्स्ट रूलर रहे हैं, लास्ट रूलर रहे हैं, ठीक है, उनके जो क्वेश्चन हैं वो पक्का पक्का आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कांग्रेस का सेशन, ठीक है, वहां से क्वेश्चन उठ के पक्का आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रैवलर्स, ओके, ट्रैवलर्स पे से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जितनी भी सभाएं हैं ना, ब्रह्मो समाज किसने स्टार्ट किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जितने भी समाज वगैरह हैं इनके आएंगे। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, ठीक है, उन सबके निक नेम्स पूछ लेंगे आपसे। उसके बाद मुगल जो हैं इसके फेवरेट हैं। उसके बाद बात करेंगे मुगल्स में जो स्पेशली अकबर जो हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग पक्का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नवरत्नास वगैरह। सो यहाँ पर क्या है, टॉपिक स्पेसिफिक है। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है, पूरी बुक उठाओगे, पढ़ना शुरू कर दोगे, पाथ फाइंडर पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हो, इतना टाइम वेस्ट करते हो ना यहाँ पे, इसलिए तुम्हारे मार्क्स नहीं आते। तुम 6 महीने से पढ़ रहे हो, इतना पढ़ चुके हो, कुछ याद ही नहीं रहेगा एग्जाम में। टॉपिक वाइज पढ़ो, ठीक है। सेम कम्स विद साइंस। साइंस में गाइज प्लीज इतना इन डेप्थ मत पढ़ो। टॉपिक कैसे आएंगे क्वेश्चन बता देती हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। बेकिंग सोडा के रिगार्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कोई ना कोई उठ के, ठीक है। कोई डिजीज के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद लॉजीज जितनी भी हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वाइटामिन एंड मिनरल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा, एसआई यूनिट्स पे आ जाएगा। ये जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और एक और काम कर सकते हो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, सो सिंपल सा है, जाके इनसाइड SSB ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे जाके ये देख लेना कि जो जीके वाला एक कोर्स होगा उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं, उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाना। और तुम देखो हार्डली 6 मिनट 15 मिनट 7 मिनट में कवर कर रखा है, मतलब बहुत स्पेसिफिक पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, वेरी लिमिटेड, ओके। सो क्या करना कि टॉपिक की लिस्ट बनाना है, अकॉर्डिंगली पढ़ लेना। इफ यू डोंट हैव, लाइक इफ यू आर रेफरिंग टू सर्टन बुक्स, 5-6 महीने हो गए पढ़ते हुए, और अगर मतलब इतना टाइम है या एफर्ट्स डाल सकते हो, या फिर इफ यू वांट टू एड अप सम मनी,
गो फॉर दिस कोर्स। मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ तुम्हें, यहाँ से बाहर क्वेश्चन तुम्हारे नहीं आएंगे। दिस इज ऑल यू नीड टू डू, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने भी आपको बताया, इंटरनेशनल कांग्रेस, गवर्नर जनरल, बुक्स एंड ऑथर्स जो इंपॉर्टेंट है, लोग इधर उधर ढूंढते रहते हैं कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी आनी है क्वेश्चन में। दिस इज जस्ट कवर्ड इन 8 minutes, देख लेना, ठीक है। ये तुम्हारी कुछ मेडाइवल हिस्ट्री की बुक्स हैं और एंशंट की, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री में हमने क्या किया है कि क्विक रिविजन करके इसमें ना जितनी भी वीडियोस हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो क्विक रिविजन में डाल दिए, सो दैट पीपल कैन जस्ट गो थ्रू लास्ट डे में, क्योंकि रिविजन करनी होती है, नोट्स नहीं बना पाते बच्चे अगर वीडियो से, तो उसके लिए। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें स्टैटिक में देखनी है, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, इनको लिख लो, पक्का क्वेश्चन आएगा। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, फादर ऑफ वेरियस फील्ड, निकने मैं भी बता चुकी हूँ, ये आपका स्टैटिक में भी आता है और हिस्ट्री में भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रेवोल्यूशन, भाई हर बार वाइट रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। मतलब दे कैन आस्क यू अबाउट फिश की इसके रिगार्डिंग कौन सा रेवोल्यूशन, द कलर्स आर देयर, एक्चुअली डिफाइंड कलर्स है, जैसे ग्रे रेवोल्यूशन, ओके। सो नाम से एंड कलर्स से दे विल आस्क यू कि अच्छा ये किससे एसोसिएटेड है। यूनाइटेड नेशंस का रिगार्डिंग क्वेश्चन देखा जाता है। उसके बाद हाँ, बहुत सारे हेडक्वार्टर्स वाला जो है वो क्वेश्चन आता है। कंट्रीज एंड करेंसी एग्जैक्टली आती है, और जितनी भी ज्योग्राफी आती है ना, मैक्सिमम मैप बेस्ड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आते। आई नो आजकल स्टेटमेंट बेस्ड आने लगे, स्टेटमेंट्स भी ऐसी हैं कि जो कि बेसिक है, मतलब स्टैटिक बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि जैसे सीडीएस में रिलेटिव क्वेश्चंस आते वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। और ये जो आपको जितने भी टॉपिक्स हैं जाना यहाँ पर और सारे देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलूँगी स्पोर्ट्स तो यार मतलब हर बार यू नो कहाँ से क्वेश्चन आने हैं। अगर तुम एंटोनिम सिनोनिम में अपने 10 घंटे खराब कर रहे हो, उससे बढ़िया है कि अपना 1 घंटा निकाल के और सारी स्पोर्ट्स की टर्म याद कर लेना, ठीक है। 1 घंटा निकाल के तुम अपना ये देख लेना कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद ट्रॉफीज एसोसिएटेड वो देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। सो इंपॉर्टेंट है, ये सारी टॉपिक्स आपके कवर्ड हैं, जस्ट गो एंड चेक आउट द टॉपिक्स और अच्छे से उन्हें प्रिपेयर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। जो ये जीएस कोर्स था यार, ये अभी से नहीं, एफकैट टू 2021 से अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो 20 से 22 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 दिस चैप वॉज एबल टू डू। ये मतलब एफकैट 2 2021 का है। फिर एफकैट 1 2022 में देख लो तुम, 299 स्कोर आया है इस बच्चे का, ठीक है, जस्ट बिकॉज ही वॉज एनरोल्ड इन द कोर्स। एंड मतलब द पीपल हैव बीन डूइंग अमेजिंग, तुम ये देख लो, ठीक है। 188 मार्क्स, 183, 182, 188, ये तो क्रैश कोर्स की हालत है। नथिंग अबाउट दोस्त जो कि ऑलरेडी मतलब चल रहे हैं, 4 बैचेस ऑलरेडी हमारे स्टार्टेड है कैट के, तो उनका सोचो। दिस इज जस्ट अबाउट द क्रैश कोर्स आई एम टॉकिंग, ठीक है। सो दिस इज जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि द स्ट्रैटेजी आई एम टेलिंग यू ना, दिस इज समथिंग वर्थ pennies. This is something nobody will tell you and I'm telling you for your sake. इसको अच्छे से फॉलो कर लो, वीडियो को आखिरी तक देखो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैथ्स पे। देखो मैथ्स को करने का एक तरीका है, कोई भी बुक उठा लो, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे RS अग्रवाल भी उठा सकते हो, तुम्हारा मन है तो, ओके, दिस इज अ गुड बुक। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, और SSC के भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा सकते हो तो उठा लेना, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं करने प्लीज, मैं पहले बता देती हूँ, ना ही RS अग्रवाल से और ना ही SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते चलो और नोटिस करो कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट कराया अपने कोर्स के अंदर, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेस या मोर देन, स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब अलग अलग टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करें हम लोगों ने क्वेश्चंस, ओके। उसके बाद हमने पढ़े हैं, बिकॉज वो आते हैं एग्जाम में कि जैसे अलग अलग टाइप है, ओके। सो हम लोगों ने पहले टाइप पढ़ी है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उनको इंटरमिक्स किया आखिरी में, कि ये सारी टाइप्स इंटरमिक्स, जो आजकल लेंदी क्वेश्चन आने लगे हो कैसे आने लगे हैं कि ये जो टाइप्स है ना इनको इंटरमिक्स कर देते हैं, या फिर परसेंटेज और रेशो और प्रोपोर्शन साथ में दे देंगे किसी ना किसी तरह, मतलब थोड़ा टफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो भी हम लोग डील करते हैं इन हॉट्स, तो हमने हॉट्स का अलग सेक्शन बना रखा है। तुम कैसे करोगे, अगर तुम कोई और रिसोर्स, अगर इफ यू आर इन द कोर्स, सो गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग, जैसे 1 by 1 कराया जा रहा है, उसके बाद असाइनमेंट करना है और फिर लाइव डाउट सेशन अटेंड करना है। अगर नहीं हो, खुद से पढ़ रहे हो, किसी एक सोर्स से पढ़ रहे हो, तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करो टॉपिक्स को, उसके बाद उसके बेसिक क्वेश्चंस लगाओ, फिर इंटरमिक्स्ड क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। और ध्यान रखना है कि सिर्फ उसी लेवल के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं करोगे, अदरवाइज बहुत टाइम वेस्ट होगा, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद लाइव डाउट सेशन लेते हैं जैसे ही वी आर डन विद दिस, और उसके बाद मैथ्स की एक रिविजन क्वेश्चन वाली सीरीज है। इसमें क्या है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। एंड ये जो 50 क्वेश्चन है,
इसका एक असाइनमेंट देते हैं, इसमें सारे इंटरमिक्स्ड क्वेश्चन, मतलब हॉट्स, वो जो मैं आपको लेंदी क्वेश्चन नहीं बता रही, जो 4-5 लेंदी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ 18, वो इसमें सारे कवर्ड रहते हैं। और मैं लास्ट टाइम का आपको दिखाती हूँ, ये जो 50 क्वेश्चन वाली, ये देख लो, FCAT 2022 बैच 1 and 2 है, मैम की जो 50 क्वेश्चन वाली PDF है, वहीं से मेजर क्वेश्चन आए हैं। 80% क्वेश्चन जो थे असाइनमेंट से थे। सो यार एक्यूरेसी का लेवल ये है। सो बेसिकली ट्राई एंड अंडरस्टैंड कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसका सिर्फ एक ही तरीका है, हमने कुछ अलग नहीं किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज ऑल यू नीड। यहाँ से देखो, यू विल गेट एन आइडिया व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं विद इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, टाइम वेस्ट मत करो। जो इजी सेक्शन है दैट इज कि एक तो एरर्स, ये कहाँ से कर लोगे, ग्रामर कर लेना अच्छे से, ठीक है। ग्रामर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बेसिक रूल्स कवर करो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करो। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी ही करनी चाहिए, दैट इज पैराग्राफ एटसेट्रा। और लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा PQRS टाइप के जो क्वेश्चन है, मतलब जो भी अपने CDS में थे ना, वो सारे एडअप हो गए FCAT में, पहले नहीं आते थे। ओके, सो ये वाले जो क्वेश्चन है इनको हम रीडिंग सेक्शन बोलते हैं। और रीडिंग सेक्शन कैसे इंप्रूव होता है, विद मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ये कैसे करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो FCAT के और उनको सॉल्व करो दबा के। दैट इज ऑल यू नीड CDS के और FCAT के, दैट इज इट। ओके, एंड उसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, देखो एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये ईडियम फ्रेजेस ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक काम कर लो, जो लिमिटेड प्रीवियस, देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये जो हम लोगों ने PDF बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, जो SSC CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, सिर्फ हम लोगों ने वो कवर किए हैं एंड वो हर बार आते हैं। देखो, टू बी वेरी सीरियस, ये देख लेना, इंग्लिश के क्वेश्चन मॉक में से ही रिपीट हुए हैं। इंग्लिश बहुत अच्छा था, ठीक है। सारे के सारे जो हैं वो एज इट इज यहीं से ही आते। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने कुछ अलग नहीं किया। इसमें हार्डली ना 200 एंटोनिम सिनोनिम्स हैं आपके, ऐसे ही कुछ 100-150 आपके ईडियम फ्रेजेस हैं। दैट इज ऑल वी हैव कवर्ड। सो टेस्ट सीरीज एक तो हमारी, उसके साथ साथ जो ये 4 आपकी PDF हैं, ये ऑलरेडी डली हुई है इन द कोर्स एज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जो फाइल है, इसके अंदर ये 4 फाइल्स हैं, ये कर जाना। इसके अलावा तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ओके, एंड वन मोर थिंग, द टेस्ट सीरीज ऑफ आवर्स हैड बीन एक्सट्रीमली यूजफुल, लाइक एक्सट्रीमली यूजफुल। 80% रीजनिंग के क्वेश्चन यहीं से देखे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। आपके एंटोनिम सिनोनिम यहीं से आते हैं। ओके, मैथ्स के टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये टेस्ट सीरीज 100% लगानी चाहिए। अगर तुम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, यू वांट टू टेस्ट योर सेल्फ, सो यू मस्ट गो फॉर दिस। आई गेस इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब आपका जो रेगुलरली है, आपको कितने घंटे चाहिए। देखो, आई जस्ट टोल्ड यू कि मुझे आपके 3 घंटे चाहिए ऑन द रेगुलर बेसिस। और जो 3 घंटे आपके किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, आपको ये तो पता चल गया आपको सब्जेक्ट कैसे करने, कितना टाइम किसको देना। अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली आपका डे कैसे जाना चाहिए। योर डे शुड गो मैक्सिमम इनटू योर स्ट्रेंथ। मतलब अगर आपकी स्ट्रेंथ है कोई, तो आप 30% टाइम उसमें एडअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जो भी कोई वीकनेस है, 20% टाइम आप उसको दे के चलेंगे कि जैसे अगर आपकी मैथ्स है एक्सेट्रा जो भी है, 20% टाइम आप उसको दीजिए दिन में। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो 30% टाइम है वो जाना चाहिए रिविजन में। मतलब तो जो रिविजन है आपकी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका जो 10% टाइम है वो जा रहा है आपने जो पिछले दिन, लास्ट डे जो भी आपने पढ़ा है, और उसके बाद जो आपका जो 20% टाइम है वो जाना चाहिए जो आपने वीकली पढ़ा है। मतलब जैसे आपने पिछले वीक कुछ स्टार्ट किया था, तो रोज जैसे आपने जो मंडे को पढ़ा था वो नेक्स्ट मंडे को पढ़ो, जो पिछले ट्यूसडे को पढ़ा था नेक्स्ट ट्यूसडे को पढ़ो। कुछ इस तरीके से रिविजन आपका होना चाहिए, जब भी आपको चीज़ें याद रहेंगी। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है 20% टाइम शुड गो इनटू टेस्ट सीरीज। नाउ इट्स नॉट इंपॉर्टेंट यू जॉइन सम ऑनलाइन सीरीज ओनली, नो, यू कैन डू वन मोर थिंग, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। अगर आपके पास, मतलब इफ़ यू डोंट वांट टू जॉइन एनी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा, बट अगर करोगे तो टाइम बेस्ड रहेगी। ओके, एंड इट इज़ एग्जैक्टली लाइक यू गेट इन द एग्जामिनेशन, कंप्यूटर पे ही आपका एग्जाम होता है। सो यू कैन जस्ट सिट ऑन योर लैपटॉप एंड डू द टेस्ट सीरीज, सो विल गेट अ बेटर आइडिया कि टाइम लिमिट में मैं कैसा परफॉर्म कर पा रहा हूँ। ओके, और टेस्ट सीरीज का काम ये नहीं होता देखना कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। द मेजर वर्क ऑफ टेस्ट सीरीज इज टू फाइंड आउट कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर वीक हैं।
विच आर योर वीक एरियाज एंड टू वर्क ऑन इट. जैसे अगर आपके मार्क्स जो हैं, आप बहुत ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आपने 18 के 18 कर दिए, लेकिन उसमें से 10 गलत हो रहे हैं, 8 सही हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है. तो आप उसमें क्या करो, कम करने लग जाओ. मतलब ज़्यादा सॉल्व मत, मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट मत करो, उसमें कम करो, ठीक है. एट द सेम टाइम अगर आप रियलाइज कर रहे हो कि आप जो जीके है उसमें बहुत तुक्के लगा रहे हो, तो उसको थोड़ा कम करो, या फिर उसमें ज़्यादा पढ़ना शुरू करो, उसमें एफर्ट ज़्यादा डालो कि आखिरी तक आते आते आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए. ओके, सो दिस इज टू फाइंड आउट कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप कहाँ वीक हैं, उस पर इंप्रूवमेंट शो करो. टेस्ट सीरीज का मेन काम वही होता है. और लिमिटेड टाइम फ्रेम में कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले करके फायदा हो रहा है. जैसे कुछ लोग मैथ्स पहले कर लेते हैं, कुछ लोग मैथ्स देख के डर जाते हैं, नहीं हो पाता उनसे फिर आगे पेपर. कुछ लोग जीके पहले स्टार्ट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू योर ओन सेल्फ आप क्या स्टार्ट करना चाहते हैं पहले, उसका ये टेस्ट सीरीज का मेन रोल होता है. आई होप यू गॉट एन आइडिया व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. इसके बाद जो आपका डेली टारगेट वाला टाइम टेबल है, दिस विल बी अपलोडेड ऑन इनसाइट एसएसबी ऐप. सो जस्ट गो एंड डाउनलोड इनसाइट एसएसबी ऐप, एंड यहाँ पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. इस पर्टिकुलर टाइम टेबल को डाउनलोड करके अपने स्टडी टेबल पे सामने लगा लो और रोज की चेकलिस्ट बना लो कि अगर आज 5th ऑफ जैन है, तो आज मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करना है, जो कि एज पर टू द टाइम टेबल रहेगा, उसको कट करते जाना. मैं उसमें टॉपिक वाइज डाल दूंगी, आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा ईजी होगा टू कवर इट अप. दिस इज गोइंग टू बी द कोर्स टाइम टेबल ऑफ द course that is starting for us, the Chetak batch, in which we guarantee you 200 plus marks. और हमारी 200 plus marks की गारंटी वेस्टफुल नहीं है, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया जब क्रैश कोर्स में 220 234 मार्क्स आ रहे हैं. सो दिस इज अ चेतक बैच विच इज एक्चुअली नॉट इवन अ क्रैश कोर्स. सो 200 प्लस इज एक्चुअली अ गारंटी. और इसमें टेस्ट सीरीज, लाइव डाउट सेशन, सब कुछ इंक्लूडेड है, लेक्चर्स वगैरह सारे चारों सब्जेक्ट कंप्लीटेड है. इट्स अ होलसम कोर्स जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा. अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप मेहनत करो, फाइंड आउट करो कहाँ से क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो, इतना टाइम अगर नहीं है, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस. और अगर पहले से पढ़ते आ रहे हो, ऑलरेडी आइडिया, तो जस्ट गो थ्रू द टॉपिक्स दैट आई हैव टोल्ड यू एंड कवर इट अप. ओके, अपना जो भी रिसोर्स कर रहे हो उसे अच्छे से करो. दैट इज इट. एक रिसोर्स पकड़ो और उसको ढंग से करो. दैट्स द ओनली वे टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. ओके, सो बेसिकली इसका टाइम टेबल यूज कर लेना इस पर्टिकुलर कोर्स का. ओके, दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू शेयर विद यू इज द टॉपिक लिस्ट. अगर आप लोगों को ये डाउट है कि मैथ्स में कौन से टॉपिक्स आते हैं, रीजनिंग में कौन से टॉपिक आते हैं, तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दो. मैं आपके लिए प्रॉपर ये टॉपिक लिस्ट जो है टेलीग्राम पे भी, और इसके साथ साथ आपके लिए मैं सेम चीज़ अपलोड कर दूंगी इवन ऑन द ऐप, सो दैट यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस सिलेबस एंड कैन चेक मार्क कि आपने सारे कंप्लीट किए नहीं किए. बिकॉज वही है ना, थोड़ा अलग हो गया सिलेबस, और सिलेबस ऐसे प्रॉपरली मैंशन भी नहीं है साइट पे. तो अगर कुछ भी डाउट है, प्लीज़ जस्ट put it down in the comment section. I'll see through it and I'll make sure that I'll make it available for you. Okay guys, and इसके साथ साथ I hope ये आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रही होगी to understand which are the important topics, कैसे हमें कवर करना है, हमारे डेली टारगेट्स कैसे होने चाहिए, हमारा डे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. ओके, एंड इफ यू वांट टू बी अ टॉपर, आई गेस this is best you can do. You can go for the course. It will be very helpful. If you have time, prepare by yourself. सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ नहीं है आज की डेट में. लेकिन अगर डायरेक्टेड मेहनत चाहिए, बिकॉज लास्ट के 2 महीने में जिसने डायरेक्टेड मेहनत कर ली, अगर भैया इधर उधर घूमते रह गए ना, रिसोर्स इकट्ठे करते रह गए, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. और एक और चीज़, बहुत लोग रिसोर्सेज भी पूछते हैं, तो मैं जल्दी से बता देती हूँ आप लोगों को. मैंने जो खुद की थी, दैट इज़ एक तो RS अग्रवाल की थी, ठीक है, मैथ्स के लिए. उसके बाद रीजनिंग के लिए भी आई डिड द सेम, मैथ्स और रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल. इसके बाद मतलब अगर हम बात करें इंग्लिश की, SP बख्शी हैड बीन अ वेरी गुड बुक फॉर मी. इट हेल्प मी इन CDS ऑल्सो एंड फॉर IFCAT एज वेल. ये मेरे लिए एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत यूजफुल रही थी. ठीक है, मेरे टॉपिक्स वर इजीली, लाइक बेसिकली माई इंग्लिश हैड बीन गुड इनफ. मेरे को बस क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत थी एंड इट वॉज वेरी यूजफुल फॉर मी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जीके जो है मैंने टॉपिक वाइज किया, मैंने जैसे तुम्हें बताया है. आई डिड नॉट डू इट फ्रॉम वन सिंगल रिसोर्स. आई प्रेफर्ड गूगल भी किए हैं कुछ टॉपिक्स. बस मैंने टॉपिक्स पकड़ के उसकी पूरी लिस्ट बना के और उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस किए थे. सो तुम भी वैसे कर सकते हो. इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. ओके, इसके अलावा तुम्हें कोई भी डाउट होता है, कुछ भी है, प्लीज लेट मी नो. एंड वन मोर थिंग, फर्स्ट 50 चैप्स विल गेट एग्जैक्टली 25% ऑफ. और तुम्हारे लिए न्यू ईयर वाले दिन, दैट इज जिस दिन एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उस दिन एक बहुत बहुत बड़ा ऑफर भी आ रहा है. सो आई होप कि न्यू ईयर का ऑफर और ये जो पर्टिकुलर ऑफर है आप लोग यूज करके यू विल बी एबल टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन विद 200+. आई एम प्रीटी श्योर ऑफ इट. एंड लेट्स सी हाउ यू वर्क वेल,
हाउ ओबीडियंट एंड रेगुलर यू आर. अगर रोज 3 घंटे दे दिए तो इस एग्जाम को क्लियर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. इट इज जस्ट अ क्लिक अवे एंड यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन. ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट. एंड रही बात यूट्यूब की, यूट्यूब पे हर कोई जानता है मेरे हर साल लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस आते हैं. इवन टॉपर ने भी किसी वीडियो में बोला है कि मैम के सिर्फ लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस करता था, वहाँ से ही क्वेश्चंस आते हैं और तुम्हें फिर से देखने को मिलेंगे. हिस्ट्री के वीडियो डालूंगी, स्पोर्ट्स के डालूंगी, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको बैचेस में देखने को पक्का ही मिलेंगे एग्जाम में. आई कैन गारंटी यू दैट. सो प्लीज फॉलो वट एवर आई एम अपलोडिंग ऑन यूट्यूब. जिसको भी रिविजन करनी है, दैट इज द बेस्ट वे. और किसी को पूरा पढ़ना है, so go for this. Okay, all the best, keep working smart, and I'm always there with you. Smart work is the only way to clear the examination very easily.